اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یہ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 74 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد جو تمہارے دل ہیں وہ سخت ہو گئے۔ فہیا پس یہ یعنی تمہارا دل جو ہے کل ہجارہ پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، یعنی تمہارا دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا بلکہ اس سے بھی بس زیادہ سخت۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ پتھروں سے لما یتفجر جو پھوٹ پڑتی ہیں بہ نکلتی ہیں منہ اس سے انہار نہریں، اور بے شک پتھروں میں سے تو کچھ وہ ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، یعنی وہ پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے ندیاں بہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ بے شک منا ان پتھروں میں سے ہیں لما یہ شقق جو پھٹ جاتے ہیں فیخرج نکلتا ہے منہ الماء ان سے پانی، یعنی پتھروں میں سے وہ ہیں کچھ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے ہیں لما یابت وہ جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور پتھروں میں سے وہ ہیں کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما تعملون تمہارے کرتوتوں سے تمہارے کاموں سے، اور اللہ جو ہے وہ تمہارے اعمالوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اب اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو موجود یہودی تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعے سننے کے بعد بھی تمہارا دل جو حق بات کو قبول نہیں کرتا، یعنی تم اپنے آباء و اجداد کے واقعے سنتے ہو، جس طرح ماقبل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کی، انہوں نے نافرمانی کی ناشکری کی تو ان پر کس طرح کا عذاب ہے، یعنی یہ تم اپنے آباء و اجداد کے واقعے سننے کے بعد بھی تم لوگ جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کر رہے، تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کر رہے، بلکہ تم حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے ہو، اور وہ شدت اور سختی تمہاری جو ہے وہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت۔ آگے پتھروں کی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، پتھر بھی ایسے ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ وہ اطاعت کے لیے نہ جھکتے ہیں نہ نرم ہوتے ہیں نہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ وہ کام کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں خاص وقت تک مہلت دیتا ہے، یعنی پتھر بھی گر پڑتے ہیں، پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پتھر بھی پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، ان سے پانی بہ نکلتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن تم جو ہو گئے ہو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو، یعنی جو حضور علیہ السلام کے دور میں جو یہودی موجود تھے۔ اور اس کی دوسری تفسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے دیکھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معجزات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے وہ دیکھا، من و سلوہ کا نزول دیکھا، اس کے علاوہ جو باقی ان پر انعام کرام ہوا، آسا سے پانی کے چشمے جاری ہونا وہ دیکھے، اور دریا کے اندر راستے بننا دیکھا، اور اس طرح متعدد جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معجزات دکھائے وہ سب کے سب دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو دل ہیں وہ اس طرف نہیں جھکتے۔ اب دل کی سختی کے بارے میں اس میں کہا گیا کہ دل کی جو سختی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، اور دل اس کے بارے میں ایک حدیث پاک آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، یعنی جو زیادہ کیا کرو وہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ کلام جو ہے وہ نہ کیا کرو۔
क्योंकि अल्लाह के जिक्र के अलावा कलाम की कसरत दिल को सख्त कर देती है, और लोगों में अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा दूर वो शख्स होता है जिसका दिल सख्त हो। यानी अगर आप अल्लाह ताला के कलाम के अलावा बाकी कलाम करेंगे तो तुम्हारे दिल जो है वो सख्त हो जाएंगे, और जो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से ज्यादा दूर हो जाता है जिसका जो दिल है वो सबसे ज्यादा सख्त हो। तो इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 75, इस आयत नंबर 75 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, अफततमऊना, तो क्या तुम्हें तमा है, क्या तुम्हें लालच है, क्या तुम्हें उम्मीद है ऐ मुसलमानों, ऐ युमिनु, के ईमान ले आए ये यहूदी लकुम, तुम्हारे लिए। तो ऐ मुसलमानों, तो क्या तुम्हें ये तमा है, तुम्हें ये उम्मीद है कि ये जो यहूदी हैं ये तुम्हारे लिए इस्लाम ले आए। वक़द काना फरीकुम मिनहुम, और तहकीक एक गिरोह उनमें से, उन्हीं यहूदियों में से, यसमाऊना, सुनता है, कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, और यहूदियों में से एक गिरोह है जो अल्लाह का कलाम सुनता है, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसको तहरीफ कर देता है, फिर उसमें रद्दो बदल कर देता है, मिन बाद ही, इसके बाद, मा अकलू, उसको समझने के बाद। यानी अल्लाह का कलाम सुनता है, उसको समझने के बाद उसको तब्दील कर देता है, फहुम यालमून, और वो इस बात को जानता भी है कि हक क्या है। यानी जानने, पढ़ने, सुनने, समझने के बावजूद भी वो उसको तब्दील कर रहा है, उसके अंदर रद्दो बदल कर रहा है। तो अंसार साहबा कराम को इस बात का बहुत हिर्स था, क्योंकि ये जो यहूदी थे उनके हमसाए थे, मदीना के अंदर यहूदियों के 3 कबीले थे। तो अंसार को बहुत हिर्स था कि जो यहूदी हैं उनके पड़ोसी हैं तो ये ईमान लें। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि यहूदी तुम्हारा यकीन करेंगे या तुम्हारे तबलीग की वजह से ईमान ले आएंगे, जबकि उनमें से एक गिरोह है जो सिर्फ उलमा पर मुश्तमिल है, वो अल्लाह का कलाम तौरात सुनते भी हैं, समझ लेने के बाद तौरात में उन्होंने पढ़ा भी है कि अल्लाह ताला के जो आखिरी नबी हैं वो बरहक हैं, वो सच्चे हैं। सुनने के बावजूद भी उन्होंने तारीफ की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सिफ्त है, जो नात है, उसको बदल डाली। तो ऐसे लोग कहाँ ईमान लाएंगे, ज्यादा तुम इनकी उम्मीद ना रखो। अल्लाह फरमा रहा है कि ये ईमान लाने वाले नहीं है, तुम इनकी उम्मीद ना रखो। अब इससे अगली आयत, आयत नंबर 76 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना, और जब व इज़ा, और जब लकू मिलते हैं, अल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनु, ईमान लाए, यानी जब वो ईमान वालों से मिलते हैं, कालू, तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। व इज़ा, और जब खला, अकेले हो, बादुम इला बादिन, आपस में, जब वो आपस में अकेले होते हैं, कालू, वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतल्लाहु, क्या तुम्हें बयान कर दिया उन्हें जो फतल्लाहु, जो अल्लाह ने खोला, अलैकुम, तुम पर, लियुहाजुकुम, ताकि वो हुज्जत लाए तुम्हारे ऊपर, बिइंद रब्बिकुम, अपने रब के पास, अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि यहूदी जो मुनाफिक थे, जब सहाबा कराम से मिलते तो कहते कि जिस पर तुम ईमान ले उस पर हम भी ईमान ले, जिस पर तुम ईमान ले आए हो उस पर हम भी ईमान लाए, तुम हक पर हो, तुम्हारे जो आका हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सच्चे हैं, उनका कौल हक है, उनकी नात और सिफात उनकी हक है, हमारे पास तौरात के अंदर ये बातें सारी मौजूद हैं। और जब यही लोग अपने सरदारों के पास अकेले होते हैं, जब उनके पास ये लोग अलग थलग होते हैं, तो वो उन मुनाफिकों को मुलामत करते हुए कहते हैं, क्या तुम मुसलमानों के सामने उनके आका की बारे में वो बातें बयान करते हो जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी किताब में बयान फरमाई, ताकि वो इसके जरिए दुनिया और आखिरत में तुम्हारे ऊपर हुज्जत कायम कर दें, कि जबकि आका अलैहिस्सलाम का नबी बरहक होना तुम्हारी किताबों में मौजूद है, तो तुमने उनकी पैरवी क्यों ना की, क्या तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। यानी उनके जो बड़े हैं वो कहते हैं कि तुम खुद ही जब बयान करते हो उन्हें, मुसलमानों को कहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर हक हैं, वो अल्लाह के नबी हैं, वो सच्चे हैं, ठीक है, जब तुम उन्हें कह देते हो वो तो इससे तुम्हारे ऊपर हुज्जत लाएंगे, वो तो कहेंगे कि यहूदी अपनी जुबान से खुद कह रहे हैं कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौरात के अंदर हमें इसका जिक्र मिला है, ये तो सच्चे नबी हैं, ये बरहक नबी हैं, ये तो तुम अपने ऊपर
अपने ऊपर दलील बनवा रहे हो, उनको अपने ऊपर पॉइंट दे रहे हो, अपने ऊपर मौका दे रहे हो। अब इससे मालूम हुआ कि हक पोशी और हजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ को छुपाना और उनके कमालात का इनकार करना वो यहूदियों का तरीका है, क्योंकि यहूदी चाहते थे कि हजूर अलैहिस्सलाम के जो औसाफ हैं, जो औसाफ मुबारक हैं, जो तौरात के अंदर बयान किए गए हैं, वो चाहते थे कि इनको छुपाया जाए, इनको ज़ाहिर ना किया जाए। इससे अगली आयत के अंदर भी यही बात की जा रही है। इससे अगली आयत नंबर 77 के अंदर, इस आयत नंबर 77 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, अवला यालमूना, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यालमु, जानता है, मा युसिर्रून, जो वो छुपाते हैं। बेशक क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह जो है वो जानता है, मा युसिर्रून, वो जो छुपाते हैं, व मा युलिनून, जो कुछ ज़ाहिर करते हैं। अब वो छुपाते क्या हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औसाफ मुबारक हैं, जो शान बयान की अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात के अंदर, वो उसको छुपाते हैं। और वमा युलिनून, और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं, ज़ाहिर उन्होंने क्या किया कि उनके आगे कुछ लोगों ने मुसलमानों का ज़ाहिर कर दिया कि आप बरहक हैं, आप सच्चे हैं। जब वो अपने लोगों के पास जाते हैं तो वो उन पर वो लान तान करते हैं कि तुम अपने ऊपर दलील बनवा रहे हो, यानी वो जो है वो छुपा रहे हैं, यानी वो जो कुछ छुपा रहे हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन सब से बाखूबी वाकिफ है। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 78, इस आयत नंबर 78 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, वमिनहुम, और उन्हीं में से, ठीक है, उन्हीं यहूदियों में से, उम्मियून, कुछ अनपढ़ हैं, ला यालमून, वो नहीं जानते। उन यहूदियों में से कुछ अनपढ़ हैं जो ला यालमून किताब, जो किताब को नहीं जानते, इल्ला अमानिया, मगर जुबानी पढ़ लेना, मगर उनकी अपनी मनगढ़ंत बातें, यानी वो जो है वो किताब को नहीं जानते, वो किताब को नहीं पहचानते, वो किताब का नॉलेज, किताब का इल्म नहीं रखते, मगर उनकी जुबानी पढ़ लेना या उनकी अपनी मनगढ़ंत बातें। व इनहुम, नहीं है वो, इल्ला यज़ुन्नून, निरे गुमान, यानी वो सिर्फ निरे गुमान में है। यहाँ से यहूदियों के दूसरे गिरोह का तज़किरा किया गया है और फरमाया गया है कि अब यहूदियों के दूसरे गिरोह की बात सुनिए। उनका जो दूसरा गिरोह है उनमें कुछ अनपढ़ हैं जो किताब यानी तौरात को खुद तो नहीं पढ़ते, इसके बारे में नहीं जानते, बल्कि अपने मफाद परस्त सरदारों के जो बयानात हैं, जो वो बयान करते हैं, उनको उल्टे सीधे ख्यालों गुमान में पड़े हुए हैं कि उनकी तो बख्शिश हो ही जाएगी। ये उन्हीं मन गलत ख्यालों में खुश हैं, यानी जो उनके जो बड़े हैं, जो उनके सरदार हैं, वो खुद तो नहीं पढ़ते, वो खुद तो नहीं पढ़ते, या पढ़ते हैं तो ऐसे ज़बानी पढ़ लेना, उसको समझते नहीं है, और वो जैसे उनके सरदार बयान करते हैं उनको उल्टा सीधा बयान कर लेते हैं, हालांकि हक बनता है कि वो खुद पढ़ें, खुद समझें। इसी तरह कुरान पाक के अंदर भी अब मुस्तशरिकीन लोग कुरान पाक को पढ़कर इसमें से एतराज निकालकर मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। अब अगर एक आम मुसलमान कुरान पाक पढ़ेगा, इसको समझेगा, तो वो उनके वर्गलाने में नहीं आएगा। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि उनका एक एतराज है कि ये जो कुरान पाक है ये पूरी उम्मत के लिए नहीं है, तमाम जहान वालों के लिए नहीं है। वो इसकी दलील कुरान से देते हैं, वो एक आयत का हवाला देते हैं, वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाओ, और इससे वो आम मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं कि तुम्हारा कुरान कह रहा है कि तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाओ, वो पूरी उम्मत को तो कह नहीं रहा। जबकि बाकी जगहों पर आया है कि आप जो रसूल आए हैं वो तमाम उम्मत के लिए, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया के अल्फाज हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास के अल्फाज हैं कि मैंने तमाम लोगों के लिए मैं रसूल बनकर आया हूँ। वमा अरसलनाका, हमने नहीं भेजा आपको, इल्ला काफ़तन लिन्नास, तमाम लोगों के लिए, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूँ। अब इन आयत का पता तो हमें तब चलेगा ना जब हम कुरान मुकम्मल पढ़ेंगे, सिर्फ ज़बानी पढ़ने से तो मसला हल नहीं होना, इसको समझेंगे। अब वो भी यही करते हैं कि ज़बानी पढ़ लेते हैं, उसकी तय तक नहीं जाते, उसके मानी और मफ़हूम तक नहीं जानते, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका गुमान है कि हम जन्नत में जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर भी फर्ज है, लाजिम है कि हम पूरे कुरान पाक को पढ़ें, पूरे कुरान पाक को फिर समझें, ताकि अगर कोई मुस्तशरिक, कोई गैर मुस्लिम हमारे कुरान में से कोई अगर दलील निकालकर, कोई बात निकालकर, एक पॉइंट से आयत निकालकर हमें वर्गलाने की कोशिश करे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये आयत क्यों आई है। अब जो वो आयत है वांजिर अशीरतकल अक़रबीन वाली कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाओ, तो वो इब्तिदाई वही कितने से थी, यानी इब्तिदाई इस्लाम के अंदर था। जो आप को जो पहले हुक्म आया था वो यही आया था कि आप अपने करीबी रिश्तेदार जो आपके घर वाले हैं उनको आप तबलीग करें, उनको अल्लाह का डर सुनाएं, और उसके बाद
رفتہ رفتہ جو حکم ہے وہ بڑھتا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تبلیغ کا حکم ہے اس کو مزید بڑھانے کا حکم دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔